Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Dharmaj Crop Guard Limited Q2 and H1 FY26 earnings conference call hosted by TIL Advisors. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Abhishek Mehra from TIL Advisors. Thank you and over to you. Welcome everyone. Good afternoon and thank you for taking the time to join us in this earnings conference call of Dharmaj Crop Guard Limited. The investor updates have already been uploaded on the stock exchange and on the company's website. To take us through today's results, we have with us the management, Mr. Ramesh Talavia, Chairman and Managing Director, Mr. Jaman Talavia, Full-Time Director, Mr. Vishal Domadia, Chief Executive Officer, and Mr. Vikas Agarwal, Chief Financial Officer. We'll start with a brief opening remarks on the business performance from Ramesh sir, following by opening remarks and financial performance by Mr. Vikas Agarwal, and then open the floor for Q&A session. I'd like to remind you all that anything and everything said on this call that represents any outlook for the future, which can be construed as a forward-looking statement, must be viewed in conjunction with the risks and uncertainties that we face. These risks and uncertainties have been mentioned in our annual reports. With that said, I would now like to hand over the call to Ramesh, sir. Over to you, sir. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us today for the Q2 and H1 financial year 26 earnings conference call for Dharmaj Crop Guard Limited. We are pleased to report that for Q2 financial year 26, Dharmaj recorded revenue of 347 crore, reflecting a 12% year-on-year growth. For the first half of financial year 26, revenue reached 715 crore, registering 26% year-on-year growth. This year, our Q2 revenue was sequentially lower than Q1, which is the uncommon trend of our company. The primary reason for this divergence was an early onset of monsoon, which arrived nearly 20 days ahead of schedule. This led to a predominant in Kharif season demand, resulting in some Q2 sales being booked in Q1. Despite this early monsoon effect, which were evident in Q1, we still anticipate a sequentially stronger Q2. Unfortunately, the erratic and uneven nature of monsoon towards the end of Q2, particularly in late August and September, resulted in crop losses and subdued demand for agrochemicals across the country. Some regions experienced excessive rainfall while others faced deficits, creating an uneven environment in terms of soil moisture and market conditions. Additionally, lower pest activity due to the heavy rainfall led to reduced insecticide spraying, especially in September, which further impact demand. This trend was observed across the industry. Northern India, especially Punjab, Northern Rajasthan and neighboring states, also faced localized flooding, while our primary concentrations is in Western and Central India. These events had some incremental impact. In summary, while the second half of Q2 did not unfold as anticipated, especially after a promising start to the monsoon, to the season, our results for Kharif season as a whole demonstrates strong resilience. On an H1 FY26 to H1 FY25 basis, we delivered a robust 26% year-on-year growth, underscoring the strength of our executions and market positioning. Breaking down our top line further, our formulation business continues to be mainstay, delivering 17% year-on-year growth in brand formulation and 21% year-on-year growth in domestic institutional formulation for H1 FY26. The active ingredient segment has scaled up meaningfully as well as posting 44% year-on-year growth in
H1 FY26. Furthermore, our export institutional business, which faced challenges last year, has returned to growth with 51% year-on-year expansion in H1 FY26. On the profitability front, our Q2 margin moderated sequentially and year-on-year, mainly due to the lower contributions from our brand formulation business and higher share of active ingredient and export. Increased operational expense in Q2 due to our annual appraisal in rise in headcount and certain non-cash items like mark-to-market forex losses also impacted margins. Consequently, we saw Q2 EBITDA margins compress relatively to Q1. However, on an H1 FY26 to H1 FY25 comparison, margin improved slightly, driven by higher scale and operating leverage. This improvement is reflected in our net profit, which stood at 49.9 crore for H1 FY26, up from 36.1 crore H1 FY25. Looking ahead, active ingredients remain an important lever for margin expansion. We aim to keep our Saikha facility EBITDA positive throughout financial year 26, supported by scaling up and increasing captive consumption at our formulation plant with an improving pricing environment for the industry. We expect active ingredient to further enhance profitability. Another highlight is receipt of an interest subsidy of approximately 3.53 crore in November, pertaining to our period from January 24 to April 25. Looking forward to the upcoming Rabi season, with favorable moisture and reservoir level nationwide, we are optimistic about the good demand momentum. We are confident to our ability to surpass last year's Rabi performance and remain firmly on track to achieve our growth objective for financial year 26. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We'll take a first question from the line of Shlok Akolia, an individual investor. Please go ahead. So my first question was that we know that the whole industry has faced a difficult environment because of erratic monsoons and subdued channel movement, but expectations for Rabi are highly positive. How is Dharmash thinking about H2 performance, and is there any update to your earlier guidance? In H2, we are confident to our growth planned in this year, current year, because of the last year comparatively, Rabi season is some lower part, and this year is we have highly optimistic to grow our business. So 20% growth. Shlok, sorry, your voice is sounding muffled. Can you just repeat it? Am I audible now? Yes. So 20 to 25% growth is what we expect for the whole year, around expansion. I'm sorry, we've lost you again, Shlok. No, we still can't hear you. Your voice is very muffled. Am I audible now? Now it is better. Please go ahead. So 20 to 25% growth is what we expect for the whole year as provided before, and about 150 points of. I'm sorry, we lost you again, Shlok. Shlok, can you be in a good network area and then maybe join back the queue, please? Thank you.
We'll take our next question from the line of Dvipal Goswami, an individual investor. Please go ahead. Good afternoon, sir. Thank you for the opportunity. Am I audible? Yes. सर मैं ये पूछना चाहता था कि हमारी जो ब्राजील सब्सिडरी का रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या प्रोग्रेस है और 2-3 साल बाद हम अपनी एक्सपोर्ट पाई को कहाँ देख रहे हैं? हमारा जो ब्राजील सब्सिडरी का हमने प्लानिंग किया है वो अभी हमने ऑन पोस्टपोन रखा, मतलब होल्ड पे रखा है। पहले हमारा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, फिर हम वहाँ सब्सिडरी रजिस्टर करेंगे और बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे। उसमें अभी भी 1 साल के आसपास का समय लगेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो हम ऑप्टिमिस्टिक है कि नेक्स्ट ईयर अपना रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, उसके बाद अपना जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब हम अपना सब्सिडरी वहाँ रजिस्टर करेंगे। ओके सर। और हम ईयर ऑन ईयर सर देखें अगर तो Q2 FY25 से Q2 FY26 हमारा EBITDA 11% से 9% आ गया है, तो थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है सर उस पे। तो उस पे क्या हमारी राय है सर, और आगे जाके हम उसको कैसे देख रहे हैं 6 months डाउन द लाइन? हमारा जो प्राइसिंग प्रेशर जो जीपी मार्जिन दिख रहा है वो एक्चुअली हमको कंपेयर करना चाहिए फ्रॉम H1 to H1 एक्चुअली। इफ यू सी तो H1 to H1 हम कंपेयर करेंगे तो वो जीपी मार्जिन इंक्रीज हुआ है लास्ट टाइम से, इफ यू कंपेयर दैट। और जो हमारा H2 का रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी वो सेम उस पर ही रहेगा जो हमारा लास्ट टाइम का हमने जो गाइडलाइंस किया था। तो हमारा जो गाइडलाइंस है 20 to 25% ओवरऑल इंक्रीज का, और जीपी मार्जिन जो लास्ट ईयर 8% था दैट विल इंक्रीज टू 1 to 1.5%, 9 to 9.5% के आसपास रहेगा ओवरऑल। ओके सर। और लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि हमारी ये जो रबी सीजन है वो कैसी जा रही है, और हम केरला में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो और हम कौन सी जियोग्राफीज को टारगेट कर रहे हैं, और अपना साइका प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है सर? जैसे रबी सीजन की हमने बात करें तो रबी सीजन इस साल अपना पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बारिश अच्छा हुआ है, सब डैम्स वगैरह भरे हुआ है, तो इरिगेशन फैसिलिटी फुल है। तो ऑलमोस्ट ऑल पान इंडिया में रबी सीजन का जो अपना बिजनेस है वो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में ग्रो ही होगा, बराबर। और साइका की कैपेसिटी हम अभी यूटिलाइजेशन हमारा 55% अराउंड है, 65% अराउंड। ओके सर। और FY27 के लिए कितना होगा सर? FY27 के लिए हमारा यूटिलाइजेशन 70+ रहेगा, 70% प्लस रहेगा। Okay sir, okay, that's it from my side, and all the very best. Thank you. Thank you. Next question is from the line of Yogansh Jeswani from MAPL. Please go ahead. Hi sir, good afternoon. Thank you for the opportunity. Sir, can you share about the volume growth that we registered in both the formulations and the technical side? I'm sorry if you covered it in the opening remark, but the line was quite patchy. So we have a volume growth of around 30 to 35% overall. Okay. So can you break it down between technical and formulation, please? Technical and formulation में for technical it was around 30%, and for formulation it was around 35%. Approximately, I am 1330. 28 to 30%. Okay, 28 to 30% in technicals and 35% in formulations. Yes, so overall it is 30 to 35%. Okay, and this you're saying for H1 or for Q2 specifically? No, it is for H1. This is for H1. Got it. Yes. And sir, with this volume growth that is coming to the technical, so how much are we now being able to do captive and how much is it outside? So our captive utilization product to product will be around 30 to 35% of the total production, and the rest will be outside sale. Okay. And sir, like you're sharing to the previous caller that in FY27 you're expecting 70% utilization in the Saika unit. So when that happens, the captive consumption will still stay 30-35%, and this will be the growth from the outside market that we'll do, or the captive will increase further?
It will be, both will increase actually. So percentage wise, it will be remain more or less same actually. Our captive will also increase and outside sale will also increase in same percentage. So there will be hardly any difference in percentage wise. Fair enough, understood. And sir, in terms of products, if you can call out what are the key products that is leading the technical customers at the moment, and going forward, what is your expectation from these products in terms of price range, in terms of volume? I know it's tough to give a guidance. I'm not asking for a guidance, but just a broad understanding of what are the key products and how you are looking at them in terms of the market dynamics. और मेनली टेक्निकल में जो अपना जो की प्रोडक्ट है मैं साइपरमेथ्रिन है, अल्फामेथ्रिन है, परमेथ्रिन है, और सेकंड लाइन हमने जो डेवलप किया है अपना कैप्टिव कंजप्शन के लिए, उसमें हायोफेनेट मिथाइल है, मेटालिक सील है और क्लोरेंटिनापोल है, टेबुकोनाजोल है, जो मैक्सिमम हम कैप्टिव कंजप्शन में यूज करते हैं। सबका सब प्राइस ट्रेंड कैसा चल रहा है लास्ट कुछ टाइम से, अगर आप वो एक बता सकें? प्राइस ट्रेंड अभी तक तो अच्छा था, अब शायद थोड़ा एक आध महीने में थोड़ा कई प्रोडक्ट में डिक्रीज दिख रहा है, बाकी सब मेंटेन है। अच्छा, तो 5 से 10% डिक्रीज की इससे ज्यादा? ना, बस उतना ही। अच्छा, समझा सर। अच्छा सर, रमेश जी, एक आपने लास्ट टू लास्ट कॉल में शेयर किया था कि कुछ अपनी जो न्यू मार्केट्स थी जो हमने स्टार्ट करी थी फॉर्मुलेशन साइड पे, आई एम सॉरी, वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा चैलेंज आ रहा था। कुछ जगहों पे टीम्स अपनी बहुत अच्छी नहीं फॉर्म हो पाई थी, कुछ जगह पे मार्केट में पेनिट्रेशन नहीं अच्छा हो पाया था, और उस पे हम लोग अपनी वर्किंग कर रहे थे। तो अपने H1 में फॉर्मुलेशन साइड पे बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ आया है। तो क्या ये मार्केट्स भी आपकी रिवाइव कर गई हैं कि ये आपकी अभी जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स थी उनसे ग्रोथ आया है, और जो मार्केट्स में इशू था वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है, तो उनसे ग्रोथ अब आगे आएगी? तो वहाँ पे जो नए 4 स्टेट हम लोगों ने ओपन किए थे, वहाँ पे काफी हम लोगों ने स्टेबिलाइज मतलब नेटवर्क और इन टर्म्स ऑफ टीम किया है। तो वहाँ का अगर ग्रोथ वहाँ से भी है और एग्जिस्टिंग मार्केट से भी है। अगर 4 स्टेट का अभी परसेंटेज देखें तो अप्रोक्सीमेट 15% हम लोगों ने 4 स्टेट में से हमारा B2C बिजनेस आया है। अच्छा सर, एक बार इन 4 स्टेट्स को कॉल आउट करेंगे? आई थिंक राजस्थान था, यूपी था, और बाकी कौन से थे? नहीं, ये था AP था, तेलंगाना था, ओडिशा था और कर्नाटका था। अच्छा, ओके। एंड सर, आई थिंक राजस्थान में अपने को काफी इशू आया था, इफ आई रिमेम्बर राइट। राजस्थान में हम लोग थोड़ा सा चैलेंजेस आया था, उसमें हम लोग डीप गए थे, पर अभी वहाँ पे रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, तो राजस्थान इज रिकवरिंग नाउ। या गॉट इट सर। एंड सर, जैसे अपने एक्सपोर्ट में हम देख रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में भी काफी अच्छा हुआ था, इस क्वार्टर भी कंपैरेटिवली आपका जितने बाकी डिवीजन से हिसाब से एक्सपोर्ट में अच्छा किया है। इवन तो वहाँ पे फिर ओवरऑल बिजनेस का साइज भी स्मॉल है, बट वहाँ पे स्टिल एक ग्रोथ अच्छी आ रही है। तो उस पर थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग जो एक अच्छा पिकअप आ रहा है, एंड आगे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, आने वाले सालों में ये बिजनेस एक्सपोर्ट साइड पे कितना बड़ा हो सकता है अपना? एक्सपोर्ट में जैसे लास्ट ईयर हमको चैलेंजेस आया था मेनली तो बांग्लादेश में, तो जो करेंसी का इश्यू था, तो वो सॉर्ट आउट होने के बाद हमारा बिजनेस वहाँ फिर से मतलब रिटर्न ग्रो हो गया है। तो वो टाइमिंग था, तो इसलिए लास्ट ईयर हमारा थोड़ा बिजनेस डाउन रहा था, अब वो वापस लाइन पे आ गया है। दूसरा, एडिशनली हमें 2-3 कंट्रीज में भी एंट्री लिया है इस बार, जो पहले हम नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से अपने ग्रो हुआ है। और दूसरा, हमारा जो रेगुलेटेड कंट्री है जहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, वो अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, वो अभी उसमें 1-1.5 साल लग सकता है। जैसे रजिस्ट्रेशन आना शुरू होगा तो वहाँ बिजनेस हम अच्छा वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस कर सकते हैं, जैसे लैटिन कंट्रीज है, ब्राजील वगैरह है, यूएस में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है। तो वो अभी आगे मतलब 1-2 साल में अपना बिजनेस वहाँ स्टार्ट होगा। तब तक हम जो दूसरे कंट्रीज है उसमें जहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और हम कर सकते हैं, उसको हम अभी फोकस कर रहे हैं। अच्छा, गॉट इट सर।
एंड सर इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से प्राइस ट्रेंड्स ओवरऑल चल रहे हैं, टेक्निकल में आपने कहा थोड़ा सा सप्रेस है, फॉर्मुलेशंस में भी आप लोगों को इसी तरीके का चैलेंज दिख रहा है? सर ये टेक्निकल में जो प्राइस का इफेक्ट जो भी आता है वो तुरंत ही फॉर्मुलेशन में भी आता ही है, पर अपना जो B2C बिजनेस होता है उसमें इतना इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है, तो वो बिजनेस पैरेलली चलता रहता है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सीजन टू सीजन। कई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जो अपकमिंग सीजन में जरूरत है तो उसमें इफेक्ट आएगा, जो भी कई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जो ऑलमोस्ट खरीफ में चलता है, रबी में नहीं चलता है, तो उसमें इफेक्ट नहीं आता। तो सर जैसे अपना पूरा जो बंडल ऑफ प्रोडक्ट है, सपोज हम अभी अराउंड 200 प्रोडक्ट कर रहे हैं सब मिला के फॉर्मुलेशन में, तो फॉर्मुलेशन में इंस्टीट्यूशनल फॉर्मुलेशंस भी है और कहीं अपना जो अराउंड 100 प्रोडक्ट अपना B2C में बिजनेस कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कौन प्रोडक्ट का कैसे कब तक कोई इफेक्ट कौन सा मार्केट में रहता है, और एक साथ हर एक मार्केट में भी नहीं आता, तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सीजन टू सीजन एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम। बिल्कुल सर, सही समझे, ठीक है सर। इसमें से बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे एंड से, हम लोग ने जो अपनी एक्सपेक्टेशन या रन रेट अपना जो टेक्निकल प्लांट का, साइका प्लांट का सोचा था, वो ये था कि इस साल हम लोग एबिटा लेवल पे ब्रेक इवन करेंगे। तो आपको लगता है गिवन मोर देन हाफ द ईयर हैज पास्ड, आप अपना वो उसको मेंटेन कर पाएंगे? एबिटा लेवल पे ब्रेक इवन ही रहेगा टेक्निकल में? EBITDA right now it is already at break even. EBITDA level पे it was already break even. So whole year also we presume that it will be positive only. It will be break even at EBITDA level definitely. And sir at PBT level? PBT level there might be we don't have any cash losses, so we can say that PBT level 50% we will cover. Got it. ठीक है सर, I'll get back in the queue. Thank you and all the very best. Thank you. Next question is from the line of Ankit Gupta from Bamboo Capital. Please go ahead. Yeah, thanks for the opportunity. Sir, ये अपना जो technical Ankit, sorry, can you use your handset mode, please? Yeah, I'm on handset only. Is it better now? Speak a little louder. Yeah, this is fine. Go ahead, please. Sure. सर ये जो हमारा टेक्निकल का बिजनेस है सर, उसमें आपने बोला कि फिर से एक महीने में थोड़े प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग प्रेशर आया था, तो ये क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक मार्केट में, चाइना का फिर से प्रेशर कंटिन्यू रह रहा है, कि किस वजह से सर आपको लगता है ये प्राइसिंग प्रेशर आया था, और आगे चल के आपको कैसा लगता है ये इसमें क्या रहेगा हमारा आउटलुक फॉर द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स इन FY27? इसमें जो प्राइसिंग प्रेशर है ना सर, वो लास्ट जो एक्सेसिव रेन वगैरह रहा, तो ये जो वो सम पार्ट ऑफ अगस्त एंड सितंबर जो वीक गया, तो वो कंजप्शन कहीं न कहीं डाउन रहा, तो उसी बेस पे आया था। और दूसरा मैं आपको बताऊं चाइना का, तो चाइना का ये जो अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें एक्चुअली कोई चाइना का रोल नहीं है, और हमारा एक्सपोर्ट में भी चाइना में भी 2-3 कस्टमर अभी सेट हुआ है, तो हमने चाइना एक्चुअली एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया है, लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी रेगुलर हमारा हो रहा है, तो चाइना का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कोई नहीं है एज प्रेजेंट। और आगे जो रबी सीजन है उसमें हम काफी कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक है कि उसमें बिजनेस हमारा जो लास्ट ईयर हुआ था उससे एक्चुअली हम जो बिजनेस प्लान किया 20 से 25% ग्रो हो गए, तो उसी फोकस लाइन पे हमारा कॉन्फिडेंस है कि 20-25% हम सेकंड हाफ में भी ग्रो कर लेंगे। ओके। तो सर यहाँ पे जो अपना पैराथॉइड और नॉन पैराथॉइड जो बास्केट है उसमें ज़्यादा कंपटीशन तो इंडिया में भी बहुत हुआ है, जितनी कैपेसिटी आई है 4-5 साल में, तो वहाँ पे उसकी वजह से ही लार्जली प्रेशर हो रहा है प्राइसिंग पे। या सम बिटल ये भी हो रहा है, पर हमने पूरा स्ट्रेटेजी इस साल से चेंज कर दिया है। हम जो प्रोडक्ट वहाँ आप लाइन अप कर रहे हैं अदर देन पैराथॉइड, वो मोस्टली अपना कैप्टिव कंजप्शन में भी यूज होगा, और फॉर्मुलेशन B2B जो कर रहे हैं उसी में भी मेजर वॉल्यूम जा सकता है। तो उसी बेस पे हमने स्ट्रेटेजी ये बनाया है कि जो प्रोडक्ट हमारा B2C बिजनेस में हमारे पास वॉल्यूम है
और B2B फॉर्मुलेशन में जो हमारे पास वॉल्यूम है वही हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके वहाँ टेक्निकल का जो कैपेसिटी है उसको एनहांस कर रहे हैं और मोस्टली अपना फॉर्मुलेशन बिजनेस में वो एब्जॉर्ब हो, उस तरीके की स्ट्रेटेजी हम आगे प्लान कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर में अपने को मार्जिन वाइज भी इशू ना है और हमारा इतना फोकस पायरेथ्रोड में अब हम नहीं रखा है कि जो अपना बिजनेस है उसकी इफेक्ट आए। पायरेथ्रोड एज इट इज कंटिन्यू है, लेकिन आगे जो फ्यूचर में हम जो ग्रो करेंगे, प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास ऑन वॉल्यूम है उसी में हम आगे प्लान करेंगे। सर इस साल FY26 और FY27 में हम क्या रेवेन्यू और एबिटा देखते हैं अपना टेक्निकल बिजनेस में? सर FY26 में our revenue for technical plant will be around 250 to 260, and after that it will be increased by again 20 to 25% what guidelines we have given. So according on that parameter it will be around 310 crores around. Yes. Okay. Yeah. And what kind of EBITDA margins are you looking forward in FY26 and 27 in this business? See, GP margin, I can tell you in FY26 GP margin is 22% right now, which was last year in FY25 was 19%, so it was improved. So it depends upon how the pricing will go in technicals, but we feel that could improve. Okay. Thank you, Mr. Thank you. Thank you. We'll take our next question from the line of Praneeth, an individual investor. Please go ahead. Hi, thank you for the opportunity. So I would like to understand in terms of the gross margin, like between the four the business verticals, could the management explain what gross margin does each vertical have? Yes. So our technical, as I already told in H1, for our technical, the gross margin was around 22%. For our formulation, our GP margin for our B2C is around 40%, and for formulation plus it is around 18%. Okay. What about export? Export is around 18 to 20%. Understood. And one more thing regarding capacity utilization. In a previous con call, the management has mentioned because it's a lumpy business, like in the technical, it's difficult to scale up beyond 60 to 70% mark. So what has changed now that we're able to deliver 65%? And will we need to add capacity to continue to scale our technical business? No, sir. There is some. It was a formulation actually. Formulation can't go beyond 60%. In technical, we definitely go up to 80%. So that guideline already we have given. So last year FY25 we have capacity utilization of 58%. This time it is 65 to 68% product to product. So, but with the rate we are going at, like 20 to 30% volume growth plus value growth, we will need additional capacity by next year, right? So what does the company think about that? Yeah, definitely. The next year also it will be increased. So it will be around 70 to 70 plus. No, I understand that capacity utilization will increase, but additional facility will need, because once we reach 80% and we want to maintain the revenue growth of 20% for the technical business, we will need more capacity, right? How is the management planning on catering to that demand after 80%? That part, that we will see in future actually, whether how we will increase that. Because in 80% capacity also, when we do 80% capacity utilization, our outside sale will be around 400 to 450 crores. That will take at least FY27 and 28. After that, we will think of it for to addition of new capacity utilization, new capacity. However, we have some addition in our herbicide plant that Ramesh sir will explain you later. Hello. इन फ्यूचर मतलब 1-2 साल के बाद हम सोच रहे हैं कि अभी हम हर्बिसाइड का भी टेक्निकल प्लांट में प्लानिंग करें tentatively. Okay. So right now our technicals only are in insecticides. Now we are also expanding towards other technicals in herbicides also. Presently हम खाली इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड अपने प्लांट में कर रहे हैं साइका में, और हर्बिसाइड का जो कई प्रोडक्ट है जो अपना कैप्टिव कंजप्शन में यूज होता है
और वॉल्यूम है हमारे पास, तो उसका हम अभी कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अगर इसमें सेट होता है तो आगे 1-2 साल में हम उसका प्लान कर सकते हैं। तो अभी कोई फॉर्म डिसीजन नहीं है, पर हमारा थिंकिंग अभी प्लानिंग चल रहा है उसमें। अच्छा, बट इस हर्बिसाइड का अपॉर्चुनिटी है तो इसका कितना कैपेक्स हो सकता है? हम टेक्निकल्स लगा रहे थे अभी इसमें कैपेक्स हर्बिसाइड जो टेक्निकल टेंटेटिव उसमें 75 to 100 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अच्छा, बट इस ग्रॉस मार्जिन के फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के पास ही उस लेवल पे होगा 22% के आसपास। हाँ हाँ, सही। अच्छा, ठीक। और एक और फाइनल क्वेश्चन है मेरे, इसको एक्सपोर्ट में आप लाइसेंस के देख रहे हैं ना, अभी लाइसेंस मिलने काफी मुश्किल है क्या? और दूसरे लोग नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं? और इसका मार्केट क्या है? मतलब इंडियन और लोग भी कर सकते हैं कुछ लाइसेंस लेने और कुछ कर सकते क्या? और बस धर्मज को एक स्पेशल पोजीशनिंग है हमको आने के लिए, मतलब फ्यूचर में? ना, इसमें ऐसा नहीं है। जो एक्सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन लाना होता है, सपोज हम ब्राजील में अभी हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, पोलैंड में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, तो वहाँ जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो हम टेक्निकल बनाते हैं, तो वो लोग प्लांट का विजिट भी करते हैं। सारा रजिस्ट्रेशन पार्ट में उसका प्रोसेस लंबा होता है, मैक्सिमम 2 साल से लेकर 4 साल तक का उसका प्रोसेस रहता है, और डिपेंड करता है वहाँ की गवर्नमेंट पे और जो वहाँ का हमारा कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसी बेस पे उसमें रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर जो टेक्निकल बेस्ड कंपनियां हैं और जो उसका प्रोडक्ट प्लांट विजिट वो सब अगर उसको कन्वीनियंट लगता है तो ही आगे बढ़ता है। तो उसमें ऑलमोस्ट हमारा ब्राजील में जो 4 प्रोडक्ट है जो ऑन टेक्निकल बना रहे हैं, सपोज हम साइपरमेथ्रिन है, अल्फामेथ्रिन है, बाइफेंथ्रिन है, तो उसका हमारा रजिस्ट्रेशन अब एंड तक प्रोसेस पे है, तो कभी भी आ सकता है, मतलब विद इन अ ईयर। तो वहाँ हमारा बिजनेस वॉल्यूम जो होगा वो उस हायर होता है, जो उसकी वहाँ का प्लानिंग जो रहता है। सो अभी हम लाइसेंस कर रहे हैं, बस टेक्निकल्स के लिए एक्सपोर्ट के सोच रहे हैं। हाँ, टेक्निकल का एक्सपोर्ट का लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो कंट्री में हमें एक्सपोर्ट करना है वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, हमारे हाथ में वो नहीं होता। हमें सिर्फ उसकी प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं, उसका जो क्वेरी आता है उसका रिप्लाई करते हैं। अच्छा, बट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो टेक्निकल्स में होगा, फॉर्मुलेशंस में तो नहीं होगा ना? टेक्निकल्स में ये जो हाईली रेगुलेटेड कंट्री है उसी की बात कर, बाकी जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो तो हो ही रहा है हमारा, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, और वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे बांग्लादेश है तो वहाँ ओनली फॉर्मुलेशन बिजनेस ही होगा, वहाँ टेक्निकल बिजनेस नहीं होता है, बराबर। वियतनाम है तो वहाँ टेक्निकली बिजनेस होगा, वहाँ फॉर्मुलेशन का बिजनेस नहीं होता, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी फॉर्मुलेशन फैसिलिटी उन लोगों के पास है, तो यहाँ से टेक्निकल लेके वहाँ फॉर्मुलेशन करते हैं। और बांग्लादेश है तो वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो फॉर्मुलेशन ही परचेज करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, और वहाँ ओनली उनकी ब्रांड में वो पैकिंग करके देते हैं। और जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, तो वहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ फिनिश प्रोडक्ट करके ही वहाँ जाते हैं, वहाँ खाली लोग जो कस्टमर है वो ट्रेड करते हैं। तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, उसका किस तरीके का बिजनेस मॉडल है, तो उसी बेस पे हमें यहाँ कस्टमाइज करके वहाँ भेजते हैं। अच्छा, समझ गया। सपोज वियतनाम कंट्री है तो वियतनाम में कई प्रोडक्ट टेक्निकल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कई प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन भी होता है, जो प्रोडक्ट वहाँ फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते, और हमारा जो फॉर्मुलेशन का लाइसेंस, अपना जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस प्रोसेस चल रहा है कहीं आ भी गए, तो वो यहाँ से हम सीधा फॉर्मुलेशन भी भेजते हैं। और वैसे सेम इंडोनेशिया में है। अच्छा, गॉट इट। सो कंट्री की कंट्री पे थोड़ा अलग रह सकते हैं, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जो उसकी रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई ये प्रोडक्ट हमें इतना फॉर्मुलेशन में चाहिए, कि ये प्रोडक्ट हमें टेक्निकल चाहिए, तो उसी बेस पे हमें प्लान करना होता है। जैसे हमने रिसेंटली रशिया में भी अपना रजिस्ट्रेशन एक प्रोडक्ट का आ गया, तो वहाँ ये प्रोडक्ट फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, तो वहाँ अपना ये साल में अपना एंट्री और बिजनेस वहाँ स्टार्ट हो जाएगा रशिया में। अच्छा, गॉट इट। तो एक साल पहले से चल रहा था, तो अभी रजिस्ट्रेशन हमको मिला है, तो अभी अपना बिजनेस वहाँ से स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्या उसकी रिक्वायरमेंट
गॉट इट, समझ लिया। और एक हमारा डोमेस्टिक फ्रंट में और जियोग्राफिक एक्सपेंशन में हमारा सोच था कि एवरी ईयर 1-2 जियोग्राफीज ऐड करते जाएंगे, उस हिसाब से हम एक्सपैंड करेंगे। बट अभी का सिचुएशन क्या है, अभी नया वाला जियोग्राफी क्या है और इसका रिस्पॉन्स कैसे है, मतलब और बढ़ रहे हैं? इसका एक्सपेंशन के बारे में कुछ अपडेट दे सकते हैं? मैं समझा नहीं, आप इससे थोड़ा बोलिए। सो हम डोमेस्टिक फ्रंट में और जियोग्राफिक एक्सपेंशन में तो अपडेट दे सकते हैं, क्या जियोग्राफी में अभी जा रहे हैं, अब नया वाला जियोग्राफी एंटर करेगा, उसका रिस्पॉन्स क्या है? मतलब वो तो ऑलमोस्ट हमने पैन इंडिया में अभी प्रेजेंस अपना बना लिया है B2C में। जो साउथ इंडिया बाकी था वो साउथ से हमने स्टार्ट कर दिया, आंध्र तेलंगाना वगैरह में। तो अब वहाँ हमारी जो स्ट्रेटेजी उसमें ऐसा रहता है, फर्स्ट ईयर हम उसको टीम बनाते हैं, नेटवर्किंग डेवलप करते हैं, सेकंड ईयर से उसको ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, तो 4 से 5 साल में वो स्टेट है फुल एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, जैसे हम अभी गुजरात है, MP है, राजस्थान में कर रहे हैं उस तरीके से। अच्छा, गॉट इट। और फाइनल क्वेश्चन में बैलेंस शीट के बारे में, हमारा डेट रिडक्शन का कुछ प्लान है क्या अभी, और इसका हिसाब से क्या देख रहे हैं मैनेजमेंट? Can you repeat it, please? So regarding the debt reduction, I see that we still have like a portion of debt on the books. What is the plan on reducing it, or what is the strategy behind maintaining it for the company? Like, how does the management see the debt? About the debt you are asking? Debt reduction. Debt reduction, actually, right now we have got a subsidy on that. So debt reduction, it will go as per schedule only. Okay, so we don't expect to prepay any of it or something like that because it's because we are getting interest. Yeah, because we are getting interest subsidy on that. If you see our commentary, we have already got 3.5 crore interest subsidy in November. Understood. So got it. Thank you so much for the management's patient answers. Thank you. Welcome. Thank you. Next question is from the line of Bhavik Naran from Bastion Research. Please go ahead. Hi, thank you for taking my question. I'm new to the company, so please forgive me if you're repeating anything. So I just wanted to understand, like, what kind of revenue mix do you have in mind regarding the different verticals that much operating? Like any internal target or anything? Yes. Our internal revenue target for the current year for B2C, it will be around 220 to 230. It will be increased by, as we already told, 20 to 25% increase of our last year's sale. Our B2C formulation or bulk will be, B2B bulk and formulation will be around 630 to 650. Our export will be around 70 to 80, and our technical business will be 250 to 270. So overall it will be 1150 to 1200. Okay. And as I could see, like, I think there are a lot of registration pending in our pipeline that is expected. So any expected timeline on those? There are no, as sir has already, Ramesh sir has already told you, there are many registrations going on in formulation side and technical side, and each one have a product to product, country to country, there is a timeline actually. So each one have their own timeline and it will on the process actually. So every month, every time we are getting 1 or 2 registration license completed in our formulation. So it will take its own time actually. Okay, that's all from my side. Thank you. Yeah. Thank you. Next question is from the line of Smith Shah from JHP Securities. Please go ahead. Yeah, sir. Am I audible? Yes. Yes, please go ahead. सर अगर मैं देखूं, मैंने आपका ब्रांडेड फॉर्मुलेशन का लास्ट 10 to 12 क्वार्टर्स का नंबर डाला हुआ है, तो ये हम 50-60 करोड़ के मार्क पे लास्ट 12 क्वार्टर्स से है इन ब्रांडेड फॉर्मुलेशन, और ये बढ़ ही नहीं रहा। मतलब हम लोग अलग ज्योग्राफीज में भी पेनिट्रेट कर रहे, लाइक अलग सिटीज में पेनिट्रेट कर रहे, पर यहाँ पे स्केल अप नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? क्या इश्यूज आ रहे हैं इन द लास्ट 2 years दैट यू हैव फेस्ड? नहीं, आपने कहाँ से किया कि ब्रांडेड बिजनेस स्टैग्नेंट है? फिर से डेटा बताएंगे? हाँ, मतलब वो जो आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देते हो ना, वहाँ से मैंने नंबर्स एक्सेल में डाले, तो वो
अपना 50-60 करोड़ पर क्वार्टर से नंबर ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब थोड़ा स्टैग्नेंट टाइप हो गया, वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा ओवर द लास्ट 10 to 12 क्वार्टर्स। ईयर टू ईयर ग्रोथ आप देखेंगे ना तो हमारा 20% ग्रोथ लास्ट ईयर भी 20% के आसपास ग्रोथ था, और दिस ईयर भी हम लोग 18% से H1 में अभी ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ एक ही क्वार्टर है ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है Q2, जिसमें हम लोग स्टेगनेंट में ऑलमोस्ट पैरेलल रहा, बाकी हर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर हर क्वार्टर में ग्रोथ है। ओके, और ये अपना जो ग्रॉस मार्जिन हमने बोला जो टेक्निकल में 21-22% है, तो ये अगर मैं बाकी डोमेस्टिक प्लेयर्स का देखूं तो उनका ऑलमोस्ट 30 से 33% तक जाता है, तो अपना क्यों इतना कम है? मतलब हम लोग खाली डोमेस्टिक में बेच रहे मार्केट में, इसके लिए कि क्या रीजन है? मतलब अभी है ना, हमारा जो टेक्निकल सेल्स है मोस्टली डोमेस्टिक में है, इंडिया में ही, एक्सपोर्ट में नहीं है। अगर जो कंपनी का आप जो देख रहे हो उसका मेजर एक्सपोर्ट होता है और रेगुलेटेड कंट्रीज में होता है, जो ऑन रजिस्ट्रेशन होता है उसका, तो वहाँ उसको ज्यादा मार्जिन मिलता है। इसी वजह से हमारा जो जीपी है वो डाउन, और अपना जैसे रजिस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगा तो अपना भी वो उसमें पैरेलली मेंटेन होंगे। ओके, और ये हमने टेक्निकल में बोला था कि टेक्निकल प्लांट के लिए कि अगर पीक यूटिलाइजेशंस पे पहुंचेगा, मतलब 75-80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस, तो हम टेक्निकल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लांट है उसमें 15 to 18% एबिडा मार्जिन कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द करंट प्राइसिंग डू यू स्टिल थिंक कि ये अचीवेबल है एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? या अचीवेबल है, और जैसे मैंने ये भी बताया ना कि एक्सपोर्ट में हमारा रजिस्ट्रेशन आएगा तो और कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन होगा 75 to 18, तो ऑटोमेटिकली अपना जो एबिटा मार्जिन है वो मैनेज हो जाए। ओके, और सर प्राइसिंग वाइज आपको लाइक इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर्मुलेशन और टेक्निकल दोनों में अगर मतलब आप कुछ कमेंट्री दे पाओ कि कैसा लग रहा है आपको फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑल्सो, कि प्राइसिंग वाइज कैसा है? प्राइसिंग वाइज तो हम ये रबी सीजन में पूरा ऑप्टिमिस्टिक है और कॉन्फिडेंट है कि भाई बिजनेस तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में ग्रो होना ही होना है, बराबर 20 से 25%। तो प्राइस में कई प्रोडक्ट में थोड़ा डाउन स्लेग आ सकता है, बाकी ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट में तो बाकी दूसरे प्रोडक्ट में कोई इतना इफेक्ट नहीं रहेगा जो हम मेजर ब्रांड बिजनेस कर रहे हैं और B2B फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। ओके, समझ गया। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। We'll take our next question from the line of Shreyash Shetty, an individual investor. Please go ahead. सर मैनेजमेंट को पहले तो H1 FY26 में रिकॉर्ड हाई हाफ ईयर सेल्स पर बहुत बधाई। थैंक यू सर। सर मेरा पहला सवाल टेक्निकल प्लांट पर है। सर आपने बताया कि लगभग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30 to 35% फॉर्मुलेशन में रहेगा रॉ मटेरियल का, तो सर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का क्या रहेगा आप बता सकते हैं? एक्सपोर्ट में डिपेंड करता है ना प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पे। अभी तो हमारा एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो मेनली फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट का हो रहा है, टेक्निकल का कम ही है हमारा एक्सपोर्ट। और दूसरा हमारा जो इंटरमीडिएट हम बनाते हैं CMSE, उसका हमने एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से चालू किया है, तो इसका हमें इस साल मैक्सिमम बेनिफिट रहेगा। तो सर इस ईयर मतलब मैक्सिमम डोमेस्टिक में ही रहेगा? या सर मेरा दूसरा सवाल है सर, कंपनी का टैगलाइन है लिमिटलेस ग्रोथ। तो सर आगे जाते हुए सर इंडस्ट्री में कुछ एक्सटर्नल रिस्क है जैसे कि क्रेडिट साइकिल, मॉनसून डिपेंडेंसी और फार्मर्स का सर कभी कभी प्राइसिंग प्रेशर आता है, तो सर कंपनी इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को टैकल करने के लिए कैसे एड्रेस करेगी ताकि ग्रोथ सस्टेनेबल रहे? हमारा मार्केटिंग जो पॉलिसी है, हमने एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी, उसी बेस पे हम फार्मर लेवल पे अपना जो डीलर लेवल पे कस्टमर्स है उसको हम अपग्रेड करके नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट ऐड करके हम बिजनेस अपना जो हमने प्लानिंग कर रखा है 20 से 25% हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, फुली कॉन्फिडेंट है।
Okay. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Welcome. Thank you. We'll take our next question from the line of Desai Ventures. Kindly introduce yourself and go ahead with your question, please. Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon. This is from Desai Ventures. Sorry, can you repeat your name? This is Sid from Desai Ventures. Okay, please go ahead. Yeah. Yes. So my first question is in terms of the nature of products that Dharmaj CropGuard sells, which segment is right now picking up? Is it herbicides or insecticides or anything else? And what do you expect these segments to, how will they fare going forward? आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं? आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया. जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स है अपना इंसेक्टिसाइड में हर्बिसाइड है, राइट? हाँ, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड 3 कैटेगरी का होता है पेस्टिसाइड में. Right. So which segment is picking up the most right now, and what do you expect in terms of the product mix in the coming year? इसमें जैसे इंसेक्टिसाइड है अभी अपना लार्ज स्केल में है, बिकॉज हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी मेजोरिटी प्रोडक्ट इंसेक्टिसाइड है और ब्रांडेड में भी इंसेक्टिसाइड मेजर है और फॉर्मुलेशन में भी इंसेक्टिसाइड मेजर है. और सिनेरियो अगर मार्केट का देखे तो इंसेक्टिसाइड का ऑन एन एवरेज 50% अराउंड शेयर रहता है और 25% फंजीसाइड रहता है, 25% हर्बिसाइड रहता है, मोर और लेस. तो अब पिछले 2 साल से हम ऑब्जर्वेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो जो ग्रोथ रेट है वो हर्बिसाइड का ज्यादा है, क्योंकि लेबर का शॉर्टेज है और लेबर का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो लोग अब ज्यादा हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, फार्मर लेवल पे इम्प्रूविंग हो रहा है. तो आने वाले फ्यूचर में हर्बिसाइड का ग्रोथ रेट ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड. तो वो अपॉर्चुनिटी अब अभी हम एनालिसिस भी कर रहे हैं और हमें आगे बोला भी कि हम हर्बिसाइड का टेक्निकल प्लांट का भी थिंकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि भी ये अपॉर्चुनिटी को हम फ्यूचर में देखते हुए कैसे करना चाहिए. तो उसी बेस पे अभी हम वर्क चालू किया. Okay, understood. Thank you. And my second question is, comparing H1 FY25 to H1 25-6 numbers, your increase in trade receivables have outpaced the increase in revenue. I mean, 26% growth in revenue and 30% growth in trade receivables. Do you expect this trend to continue, and if you can shed some light on this, please? This trend was actually, it is agrochemical industry. Normally, if you see, so in H1, inventory and receivables are always high actually. So it is the same thing. However, by 15 to 20 days, because there is a delay in monsoon, so some receivables has increased, but it will be taken care in next H2. So there will be, if you see year-on-year basis, it will definitely come down. Okay, understood. Thank you. That's it from our side. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, to ask a question, please press star and 1 on your phone. We'll take our next question from the line of Shlok Akolia from Xylem PMS. Please go ahead. Yeah. So my first question was, we had, as management previously indicated that we achieved a 32 to 33% volume growth, which is far higher than the sales. Could you quantify the level of price erosion you faced during this period year over year? Additionally, how soon do you expect the pricing environment to reverse? And once price stabilizes, what are expectations on consolidated gross margins? So, Shlok, this volume increase which we have given 30 to 35%, it is product to product. So, overall, it depends upon the pricing of the product. Some product price is high, but volume might be, you see, there is not much increase in the volume. And some product pricing are low, but product is volume-wise it is high. So, overall, our guideline, what we have achieved is 30 to 35%. Overall, company-wise H1, our volume growth was there. Regarding the pricing, Ramesh sir has already given this. There are some products where we have seen some decline in the prices because of this erratic rainfall in August and September month. But overall, prices are stable, and in might be in H2 in some products we will see some decline, but it's not that much actually. Okay, sir. And the second question was, like, what is the go-to-market strategy in lithium part, and are we partnering with any MNCs in these geographies? And if yes, at what stage, like, is our conversation going on with these MNCs?
We are open to all the opportunities. So we might be in discussion with some MNC, but it will take some time to in the future actually. So we are open with all the opportunities available at present. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you. We'll take our next question from the line of Shwet Shah from Vivo Commercial Limited. Please go ahead. Hello. Am I audible? Please use your handset mode. I am on handset only, actually. Yeah, this is better now. Please go ahead. Okay. So my congratulations on great performance. I have a couple of questions. First question is about KMP remuneration. Unless I'm mistaken, I'm not able to see the exact amount of remuneration that is being paid to the KMPs. So can you please share some information on that? My second question is, what is the plan to increase the product mix such that we have higher volumes and higher margins? So these are the first key questions that I had in mind. And third is, animal health segment and public health segment were supposed to be the potential areas of growth. So what is the progress on the front? So remuneration-wise, if you see, we have an increment in July month. So in KMP also there is an increase of around 8 to 10% in remuneration overall. And regarding your public health and that question, there already we are trying to increase our volume sales in that field also, in that vertical also. Yeah, but MP, what is the exact amount? I don't think I can see the amount in the report unless I missed it. So can you tell me ballpark what is the amount? Right now for KMP is not in it is not in handy. But we will give the figures afterwards. Okay, wonderful. Thank you, sir. Yeah. And just one thing on export market, can we do anything better now? Because this, I know we are awaiting registration, but where we've already obtained registration, where we already have a base, is there any chance to increase and scale up a little bit over there? या आप तो अपना नंबर भी देख रहे हो ना, H1 में हमने काफी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में ग्रो किया है. 50% से अराउंड अपना बिजनेस जो लास्ट ईयर H1 में था उससे हमने ईयर ऑन ईयर हमने 50% ग्रो किया है. और वो हमने H2 में भी अपना जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपोर्ट में ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि हमारा 2-3 प्रोडक्ट का 1-2 कंट्रीज में जो रजिस्ट्रेशन आना था वो आ गया है, तो वहाँ बिजनेस अपना ग्रो होगा. और फ्यूचर में भी हमारा जो बेसिक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है टेक्निकल का, उसमें एक्सपोर्ट में अपना जैसे रजिस्ट्रेशन आना शुरू होगा, जो हाईली रेगुलेटेड कंट्री है जैसे ब्राजील है, यूएस है, यूरोप है, तो बिजनेस अपना वहाँ साइमल्टेनियसली ग्रो होता जाएगा. ओके. एंड सर, अपने कंपेटिटर्स में वैसे तो इट्स अ वेरी बिग मार्केट एंड देयर आर मेनी कंपेटिटर्स, वो तो है ही, बट अपने जो की प्रोडक्ट्स है उसमें अपना क्या मार्केट शेयर रहेगा? मैं ओवरऑल मार्केट शेयर, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट ही होगा, तो सबका समय वेस्ट नहीं करते हुए थोड़ा मार्केट शेयर अपना कितना रहेगा इन वेरेवर वी आर कम्पीटिंग? जो की प्रोडक्ट है अपना, जो हम टेक्निकल बनाते हैं उसकी बात कर रहे हो ना? टेक्निकल और फॉर्मुलेशन भी, नॉट B2C की बात नहीं कर रही हूँ, टेक्निकल और जो फॉर्मुलेटेड मार्केट है. अभी सपोज आप इंडिया की मार्केट साइज देखो तो अराउंड 50,000 करोड़ का है, बराबर? तो उसी में अभी तो हमारा शेयर कुछ भी नहीं है, पर जैसे हम एवरी ईयर 20 से 25% का ग्रोथ रेट कर रहे हैं अपना ऑल सेगमेंट में, जैसे B2C में, B2B फॉर्मुलेशन में, टेक्निकल में, तो पैरेलली अपना ग्रोथ रेट जो है उसी हिसाब से हमारा मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा. हाँ, तो ये तो बहुत जेनेरिक, बिकॉज 2030 में हम एक विजन लेके चल रहे हैं कि हम 2000 करोड़ का बिजनेस देख रहे हैं, और उसी में हमारा कॉन्फिडेंस है. और उसी सेगमेंट में जो हमारे पास B2C है, B2B फॉर्मुलेशन है, B2B टेक्निकल है, एक्सपोर्ट है, तो वो पैरेलली सब सेगमेंट में सेगमेंट वाइज हम ग्रो करते जाएंगे. तो आप देखो तो 50,000 करोड़ में हमारा 2000 करोड़ का बिजनेस होगा, तभी कुछ शेयर अपना दिखेगा. बराबर है. एंड सर, इतने सारे प्लेयर्स है, तो व्हाट इज
क्या है अपना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि भाई हमारा अदर देन प्राइस कॉस्ट कटिंग के अलावा अपना क्या फैक्टर है प्राइस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कोई और चीज में कि कस्टमर विल चूज अस? मैडम जी, हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो हम डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी करते हैं फील्ड लेवल पे, वही हमारा विनिंग पॉइंट है मेजर। जो हम आज B2C में इतना बिजनेस ग्रो कर पाए और पैरेलली हम B2B फॉर्मुलेशन में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सेगमेंट की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है, बराबर। B2C में हम जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, प्रोडक्ट डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी है, उसमें हमारा टूल्स है, जैसे फार्मर मीटिंग करते हैं, फील्ड डे करते हैं, डेमोस्ट्रेशन करते हैं, और सोशल मीडिया में हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहता है एवरीवेयर, और हम एक QR कोड पे अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम भी फार्मर लेवल पे चलाते हैं। सारा नंबर ऑफ टूल्स है जिसकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा, जो हम B2B फॉर्मुलेशन में हमने एक टास्क लिया कि पैन इंडिया में ईच एंड एवरी कस्टमर हमारे टच में होना चाहिए, तो उसी के लिए हमने टीम बनाई है। अभी एट प्रेजेंटली हमारे पास 7 लोगों की टीम है, जो मोस्टली इंडिया में कोई कंपनी नहीं कर रही है। हम उसको डिफरेंट वे में लुक करें कि कोई भी प्रोडक्ट चाहिए फॉर्मुलेशन में, तो हमारी उसमें मास्टरी है, वो हम उसको कैच कर सकते हैं और हर एक के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। तो लास्ट जो ये 3 साल में हमने जो B2B का बिजनेस ग्रो किया है, आप देख रहे हो नंबर भी, तो उसमें इंडिया में मोस्टली जो लार्ज कॉर्पोरेट है उसके साथ भी सबके साथ हमारा बिजनेस टाइप हुआ है, और जो B कैटेगरी का स्मॉल इंस्टीट्यूशनल कस्टमर है वो सारा लाइनअप किया है, और छोटे छोटे कस्टमर एवरी मंथ हम नए नए कस्टमर ढूंढते जाते हैं और नया प्रोडक्ट भी हम इसमें ऐड करते जाते हैं। तो ये हमारी एक डिफरेंट वे में थिंकिंग है, तो उसी वे में हम आगे ग्रो कर रहे हैं। और सर, वो जो आपका खेत पॉइंट नाम का कुछ ऐप या कुछ था, तो आप उसी की बात कर रहे हैं या ये कोई और चीज की बात कर रहे हैं? कौन सा पॉइंट है? खेती पॉइंट आपका कुछ खेती पॉइंट था ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो आप उसकी बात कर रहे हैं या कोई और चीज की बात कर रहे हैं? उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उसको तो हमने क्लोज कर दिया, आगे सेल आउट कर दिया था। अभी खेती पॉइंट का इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा ऑन B2C और B2B स्ट्रेटेजी की मैंने बताया, जो अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, एंड सर आप जो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं वो तो कमेंडेबल है, वो रिजल्ट्स में दिख ही रहा है अच्छा, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो तो कंपेटिटर्स भी ऐसा कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ग्राउंड लेवल पे। तो कुछ अपना क्या रहेगा इसमें, क्या कर सकते हैं जो रेप्लिकेट इजीली नहीं हो या अपना मतलब USP बना रहे उसके लिए? तो मैडम, ये अभी तक का नंबर है वो आप देख ही रहे हो ना। आज सपोज हमने धर्म स्टार्ट किया 2015-16 में, आज लास्ट ईयर हमने 950 करोड़ बिजनेस किया है, तो आगे हम उसी ग्रोथ रेट से हम चल ही रहे। लास्ट 2-3 साल का नंबर भी आप देख रहे हो। तो हर एक कंपनी का बिजनेस मॉडल और स्ट्रेटेजी अलग रह सकता है ना, हर एक सेम चीज नहीं कर सकते। आज जो हम डिमांड जनरेटिंग एक्टिविटी और जो मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं वो मोस्टली काफी कंपनियां नहीं भी कर सकती है। और जो B2B में आज हमारे पास प्रोडक्ट लाइनअप है, B2B में आज फॉर्मुलेशन का हम 200 प्रोडक्ट कर रहे हैं, टेक्निकल्स वाइज हमारा जो एडिशनल प्रोडक्ट हो गया सारा पिछले 2 साल में। तो ऐसा बंडल ऑफ प्रोडक्ट जो है, जो हम कैटर करते हैं, सर्विस देते हैं, वो इंडिया की कोई कंपनी नहीं कर रही। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सर। या थैंक यू, वेलकम। Thank you. We'll take a last question from the line of Rudraksh Raheja from iThought PMS. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity, sir. Just one question. If it's possible, domestic formulations business. Yeah, am I audible now? Yes, please go ahead. Can you just repeat the last part? Yeah, volume growth in domestic formulations business. Hello. Sir, yes. That already we have given that volume growth was around 30 to 35% in the whole year for H1 FY26 was there. So out of that, in our formulation, the growth was around volume growth was around 30 to 35% for this, and for Technique 35 to around 33 to 35%, and in technical it was 28 to 30%. Got it, sir. Got it. Thank you. Yeah. Thanks. Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I now hand the conference over to management for closing comments. Over to you, sir.
So we are very much sure that we will, whatever the guidelines we have given, that is 20 to 25% of the growth, that we will definitely achieve, and our this EBITDA margin growth also will increase by 1 to 1.5% during the year. Thank you. Thank you, sir. On behalf of TIL Advisors Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.